Hello everyone. Today's topic of discussion is type of organic reactions. Focus here. In organic chemistry, we have reactions like substitutions, addition, elimination, rearrangement, isomerism, and precycling. These are the type of reactions which are present in organic. Today we are going to discuss about a substitution reaction. Substitution reactions are again classified in three manners. Nucleophilic substitution, if you remember nucleophile in the last lecture, nucleus loving species which has a negative charge or lone pair of electrons. Electrophilic substitution, matlab there will be a substitution where an electrophile will attack. Electrophile is an electron loving species, okay, which have a positive charge या तो फिर electron deficient होगा. And you have a free radical. Free radical, if you remember, that odd electron. And today we are going to focus a very important substitution reaction in organic chemistry, that is nucleophilic substitution reaction. Okay. Now if you remember in my previous lecture of nucleophile and electrophile, once again I'll discuss that nucleophiles are those species which attacks on a positive area because these species are rich in electron, either by having a negative charge with an extra electron or they have a lone pair on them, lone pair of electrons on them, which make them electron rich, and they prefer to attack on the carbon atom which is electron deficient, which have a partial positive charge on it. Okay, so suppose if I talk about nucleophilic substitution reaction, so its general reaction will be बराबर देखना. Consider this as a substrate, a reactant, substrate, okay, which already has a nucleophile attached to it, but this nucleophile is weak in nature as compared to the attacking nucleophile. So there are two kinds of nucleophile, one nucleophile which is attached to the alkyl group and the another nucleophile which will replace this nucleophile. The nucleophile which replace the weaker nucleophile is strongly basic in nature, and the nucleophile which get replaced is weakly basic in nature. And जो ये nucleophile है weak part, it is also called as a leaving group, and this nucleophile which replaces nucleophile is called as a attacking group. ये पहले बराबर देख लो. So if a leaving group is attacked by attacking group, the attacking group goes on the carbon atom of the alkyl, that is a positive center, and it results into the formation of RNU, a nucleophile, and the weaker nucleophile will be eliminated from the alkyl. For example, you take RX, alkyl halide, halogen, react with aqueous KOH. Now KOH will produce a nucleophile that is OH minus ions, and OH minus ions are stronger nucleophile as compared to halides X minus. So what it will do, OH minus will attack the carbon atom and replace this X minus and result into the formation of ROH, alcohol, plus KX. Okay, तो एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि this is X minus, a halide which is rich in electron, it's a nucleophile. OH minus, hydroxide, which is also rich in electron. So this is a nucleophile, even this is a nucleophile, but OH minus is a strongly basic nucleophile as compared to X minus. That is why it can replace it easily. अब यहाँ पर देखोगे RX, again the same story. X minus प्रोड्यूस होगा, यहाँ से क्या प्रोड्यूस होगा, CN माइनस. CN माइनस इज मच मोर स्ट्रॉन्गर देन X माइनस, तो वो इसको रिप्लेस कर देगा, R प्लस पे जाके अटैक करेगा, एंड इट विल फॉर्म RCN प्लस KX. There are many more examples in nucleophilic. So सबसे पहले याद रखना है कि nucleophilic substitution reactions are those reactions where a strong nucleophile या strongly basic nucleophile substitute a weaker nucleophile, and this weaker nucleophile will be called as a leaving group. Okay, and you need to remember a very important point, that as the power of the leaving power of the leaving group, that is a weaker nucleophile, increases, the speed of the reaction rate means the speed of the reaction will increase. मतलब जितना जल्दी यहाँ से ये न्यूक्लियोफाइल एलिमिनेट होगा उतना जल्दी अटैकिंग वाला उस पर अटैक करेगा. सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ द लीविंग ग्रुप. फॉर एग्जाम्पल ट्राइफिलेट आयन, आपने इसकी जगह पे ट्राइफिलेट आयन रखा वीकर न्यूक्लियोफाइल, और उसी की जगह पे आपने Br माइनस रखा. ओके, फॉर एग्जाम्पल दिस रिएक्शन, X की जगह पे suppose we have trifilate ion, matlab for example if I write down
R is attached to triphthalate ion, okay, and R is attached to bromine. And if OH minus attacks, so R with a triphthalate ions will give more reaction, more product in a very fast manner, very high speed to form alcohol as compared to RPR, because triphthalate ion has a greater capacity of leaving the alkyl group as compared to bromide. रीज़न आप देख सकते हो कि ट्राइफिलेट आयंस अगर अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर निकल गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स लेके निकल गया, सो इट विल फॉर्म अ अनायन, एंड दिस अनायन CF3S double bond O gets stabilized by resonance. सिमिलरली यहाँ पर भी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, रिंग से भी मिलेगा, टोसाइल इसमें भी आपको मिलेगा. बट एक चीज़ नोटिस करना, ये तीनों ग्रुप के अंदर here they have 3 fluoride, मतलब it is higher electronegativity, greater minus I, and as the minus I increases anions का stability बढ़ता है. तो that is why triphthalate ions is more stable and more fast reactive as compared to all these species. So you have to remember these order कि अगर living group इनमें से कोई भी हुआ तो you can compare it कि which R with a living group can react. R with a triphthalate ion react faster as compared to R with Br. R with iodide will react faster as compared to R with Cl and so on. That is why alkyl halides का अगर हम लोग reactivity बोलते हैं तो Ri is greater than Rbr is greater than RCl is greater than RF. ये इनका reactivity होता है. क्यों? Because iodide is a better leaving group as compared to bromide. Bromide is better than chloride. Chloride is better than fluoride. So leaving group पे ये depend करता है reaction. Plus it also depends upon the attacking nucleophile. See properly. These are the very good attacking nucleophile. Triphenyl phosphine, P पे lone pair है, electrons rich, iodide, HS minus, RS minus. इनका speed of reaction is greater than 10 raised to 5 है. Okay? Clear? 10 raised to 5. 10,000 times they react faster as compared to these attacking nucleophile. Okay? तो these are the list of the attacking nucleophile. इसमें सबसे weakest है acid, जिसका रिएक्टिविटी 10⁻². मतलब अगर आपने अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल एसिड लिया और अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अगर साइनाइड ले रहे हो तो साइनाइड रिएक्शन विल बी मोर फास्टर एज कंपेयर टू द एसिड. सो यू गॉट द आइडिया ऑफ बेसिंग ऑफ लीविंग ग्रुप एंड अटैकिंग ग्रुप. नाउ देर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल ये याद रखो कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज डिनोटेड एज SN. ओके, so there are two types of nucleophilic substitution. Nucleophilic substitution. SN1 reaction, SN2 reaction. Now what is the meaning of this SN raised to 1 and SN raised to 2? If you see properly, in any reaction there are two things, substrate and nucleophile. Okay, if the speed of the reaction only depends upon the concentration of substrate, मतलब आप substrates को बढ़ाओगे, reaction speed up होगा. If you decrease the amount of substrate, the rate of reaction, the speed of reaction will decrease. But if you change the amount of nucleophile, it has no effect on the speed of the reaction. So if the speed of the reaction only depends upon one component of the reaction, then it is called as SN1, first order reaction or unimolecular reaction. But if the speed of the reaction depends upon both सबस्ट्रेट एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल, आप न्यूक्लियोफाइल का अमाउंट चेंज करो, स्पीड चेंज होगा. इफ़ यू चेंज द अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट, स्पीड विल चेंज. देन दैट रिएक्शन विल बी कॉल्ड एज SN2 और बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. तो पहले दिमाग में क्लियर करना है कि व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ SN1 एंड SN2. तो SN1 means where the rate of reaction only depends upon one component, that is substrate. आप substrate बढ़ाओगे speed बढ़ेगा. If you decrease the substrate, speed कम होगा. And second is bimolecular, where the rate of the reaction depends upon both the substrate as well as the nucleophile. Okay. Now we'll discuss first with SN2 reaction. Let us talk about SN2. तो SN2 का basic feature क्या है? The speed of reaction depends upon the substrate as well as the nucleophile. Okay, let us try to understand first what is SN2 mechanism, how it works. So first of all, SN2 का मतलब second order means where the rate of reaction depends upon both.
इसका हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल इज alkaline hydrolysis of methyl bromide. We take a methyl bromide CH3Br, it is react with the alkali NaOH. What will happen? OH minus is a strong nucleophile, it will replace Br minus. अभी आपने देखा था Br minus weak है, OH minus strong है, OH minus easily attack करेगा and replace it to form a methanol. Simple reaction है. So it's a kind of a nucleophile substitution where a nucleophile OH minus substitute a halide Br minus, which is also a nucleophile, but this nucleophile will be weak. Now काइनेटिक स्टडी क्या बोलता है फॉर दिस रिएक्शन? दिस इज अ फैक्चुअल डेटा, दिस इज फैक्चुअल डेटा. इसी के ऊपर पूरा मैकेनिज्म है, इसी पे मैकेनिज्म बेस्ड है. फैक्चुअल डेटा एक्सपेरिमेंटली इट सेज के द रेट, द स्पीड ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन बोथ सबस्ट्रेट CH3Br as well as OH minus, the nucleophile which is attacking the CH3. So that is why we say that rate is directly proportional to both. You remove the proportionality sign, you write down the rate constant K from the law of mass action, okay, and it says that rate depends upon concentration of CH3Br raised to 1 and OH minus raised to 1, therefore it becomes what? Sn raised to 2. तो यहाँ मैंने क्लियरली मेंशन किया है फॉर यू टू मेक अ नोट दैट द रेट ऑफ द रिएक्शन इज डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट, देयरफॉर इट इज सेकेंड ऑर्डर और बाइमोलिकुलर रिएक्शन, ओके, या SN2. नाउ लेट्स सी द मैकेनिज्म. मैकेनिज्म के लिए मैंने ना 3 रूट सिलेक्ट किए, उसमें से हमको एक ही रूट फाइंड करना है, ओके. सो लेट अस एनालाइज दिस. द फर्स्ट रूट, द फर्स्ट वे द रिएक्शन कैसा प्रोसीड होगा इज दैट द COH बॉन्ड फॉर्म्स फर्स्ट, मतलब कार्बन और OH का बॉन्ड पहले बनेगा, एंड देन CBr बॉन्ड ब्रेक्स. अगेन आपको मैं रिएक्शन दिखा रहा हूँ, बराबर देखना. CBr बॉन्ड ब्रेक होता है, OH और C का बॉन्ड फॉर्म होता है, ओके. तो देयर इज अ ब्रेकिंग ऑफ C एंड Br बॉन्ड, देयर इज अ फॉर्मिंग ऑफ OH एंड C बॉन्ड. क्लियर? सो अ फर्स्ट रूट is that COH bond will form first and then CBr bond breaks. मतलब OH माइनस आएगा, कार्बन आटम को अटैक करेगा फ्रॉम द बैक साइड, फ्रंट से नहीं कर सकता. क्यों? बिकॉज OH पे नेगेटिव चार्ज है. इवन Br हैज सम अमाउंट ऑफ विच चार्ज नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव विल रिपेल, देन इट फॉर्म्स अ बॉन्ड, और बॉन्ड बनने के बाद में Br माइनस ब्रेक होगा एंड इट फॉर्म्स CH3OH. वन स्टेप रिएक्शन. बट दिस रूट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज जो इसका इंटरमीडिएट स्टेट है, सी प्रॉपरली, इन दिस इंटरमीडिएट स्टेट कार्बन इज फॉर्मिंग 3 बॉन्ड्स विद हाइड्रोजन, 1 विद ब्रोमीन, 1 विद O, मतलब 5 बॉन्ड्स, एंड 5 बॉन्ड्स इज नॉट पॉसिबल. Therefore we ruled out this route and we say कि this route is not possible as the valency of carbon becomes 5. That is wrong क्योंकि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है. अब सेकेंड रूट सिलेक्ट करते हैं, देखते हैं क्या है. Second route, the carbon to bromine bond break first and then OH carbon bond form. मतलब second route 2 स्टेप का है. फर्स्ट स्टेप में C और Br अलग हो जाएंगे, it will break, Br minus will be removed and it will form a carbocation. मतलब second route favors formation of what? Carbocation. ठीक है, या कार्बोनियम आयन. Then this was the first step जिसमें कार्बोकटायन बनेगा, Br माइनस निकल जाएगा, एंड इन द सेकेंड स्टेप OH माइनस विल अटैक टू फॉर्म एन अल्कोहल. तो 2 स्टेप रिएक्शन याद रखने का. तो रूट B इज बेसिकली 2 स्टेप्स. अब रूट C देखते हैं हम लोग, ओके. नो रूट C में द कार्बन टू OH बॉन्ड फॉर्मेशन एंड कार्बन टू Br बॉन्ड ब्रेकिंग टेक प्लेस साइमल्टेनियसली. मतलब ये रूट क्या बता रहा है कि OH माइनस विल अटैक अ कार्बन एटम फ्रॉम द बैक साइड, ओके. व्हेन इट अटैक्स फ्रॉम अ बैक साइड इट फॉर्म्स अ इंटरमीडिएट स्टेट. दिस स्टेट इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन स्टेट. इन दिस ट्रांजिशन स्टेट 50% बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन OH एंड C एंड 50% बॉन्ड इज रिमेनिंग बिटवीन C एंड Br. तो अब ये स्टेट में बराबर देखोगे तो कार्बन टेट्रावैलेंट ही है क्योंकि 3 परफेक्ट बॉन्ड वो हाइड्रोजन से बना रहा है. क्लियर है? हाफ बॉन्ड O के साथ और हाफ बॉन्ड Br के साथ, मतलब टोटल मिला के 4 होता है. इट्स करेक्ट, हो सकता है ये पॉसिबल. फिर उसके बाद में वही स्टेप में दिस Br विल ब्रेक टू फॉर्म Br माइनस एंड CH3O विल फॉर्म अ कंप्लीट बॉन्ड. तो रूट C इज 1 स्टेप रिएक्शन where there is a formation of transition state which is highly unstable state
इस स्टेट में 50% बॉन्ड फॉर्म होगा, 50% बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन विल बी टेट्रावैलेंट. सो वी हैव टू रूट्स टू सिलेक्ट. फर्स्ट वाला हम लोग ने पेंटावैलेंसी की वजह से रूल आउट कर दिए थे. सेकेंड रूट 2 स्टेप का है. फर्स्ट स्टेप में बी आर विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम कार्बन एटम टू फॉर्म अ कार्बोकटायन. और याद रखना इसमें जो फर्स्ट स्टेप होता है वो स्लो स्टेप होता है, और स्लो स्टेप ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, जो रेट को डिसाइड करता है, मतलब जिस पे स्पीड डिपेंड होता है. क्योंकि सेकेंड स्टेप जो होता है इन दिस रिएक्शन इज़ वेरी फास्ट. फास्ट मतलब टाइम उसका बहुत कम होगा, ऑलमोस्ट टेंड्स टू ज़ीरो. तो कोई भी चीज़ टेंड्स टू ज़ीरो आप नहीं पढ़ोगे ना. सो हियर द टाइम इज़ फाइनाइट. फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप द टाइम इज़ टेंड्स टू ज़ीरो. तो आप सेकेंड स्टेप को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं बोल सकते. मतलब स्पीड कौन से स्टेप पे डिपेंड रहेगी? फर्स्ट स्टेप, स्लो स्टेप. अब रूट सी में एक ही स्टेप का रिएक्शन है. स्लोली OH माइनस विल अटैक, दिस स्टेप विल अ स्लो स्टेप, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. तो अभी हमको देखना है कि इसमें से आउट ऑफ रूट बी एंड रूट सी विच इज़ द करेक्ट वे ऑफ दिस रिएक्शन. लेट अस ट्राई टू एनालाइज. तो इसका आंसर हम लोगों को एक्सपेरिमेंटल स्टडी दे रहा है. एक्सपेरिमेंटल स्टडी सेज दैट रेट डिपेंड्स अपॉन बोथ. तो दोनों भी सबस्ट्रेट एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल दोनों पे स्पीड डिपेंड करता है. तो दोनों भी एक साथ दिखना चाहिए. कौन से स्टेप के अंदर? स्लो स्टेप विच इज़ अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. दोनों दिखना चाहिए. तो अगर आप रूट बी को देखोगे तो रूट बी में स्लो स्टेप में सिर्फ एक ही दिखता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, और रूट सी में स्लो स्टेप में यू सी बोथ. एंड with respect to experimental studies, if you see properly, rate depends upon both, and both should be present in rate determining state. And rate determining step is which step? Slow step. So with respect to this हम लोग root C को select करते हैं. Why? Because here in this case in slow step OH minus ions and CH3Br both take place, both react together. बट वो ही बी में नहीं मिलता है, बिकॉज बी में स्लो स्टेप में पहले वो एक्सक्लूड होता है, Br माइनस कार्बोकटाइन बनता है, फिर फास्ट स्टेप में OH माइनस अटैक करता है. मतलब यू डोंट सी OH माइनस इन द स्लो स्टेप, देयरफॉर इट इज रूल्ड आउट एक्सपेरिमेंटली. तो फॉर SN2 मैकेनिज्म वी नीड टू रिमेंबर कि SN2 मैकेनिज्म इज अ वन स्टेप मैकेनिज्म in which there is a formation of transition state where a nucleophile will form 50% bond, partial bond with the substrate, and the weaker nucleophile 50% bond will be broken. Clear hai? So according to this experimental study we suggest कि OH minus ions will attack the carbon atom from backside to form a transition state, and then Br minus will be excluded. And if you see properly, जो आपने कॉन्फ़िगरेशन लिया था उसका पूरा कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्स हो जाएगा. देयर विल बी अ इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. OH माइनस कहाँ से अटैक करेगा? बैक साइड से. लेकिन अम्ब्रेला अपसाइड डाउन हो जाएगा. अगर एयर नीचे से आएगी तो वो अपसाइड डाउन हो जाता है. इट लाइक हैपन. तो इस लाइक पूरा अम्ब्रेला एक साइड से दूसरी साइड पे शिफ्ट हो गया. इफ़ यू सी प्रॉपर्ली दोनों एज एक साइड से दूसरी साइड पे शिफ्ट हो गए बिकॉज OH बैक साइड से. जैसे बैक साइड से अटैक होगा बोथ दिस एज शिफ्ट ऑन दी अदर साइड. दिस इज कॉल्ड एज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है. तो ये साइंटिस्ट लोगों ने रूट सिलेक्ट किया था. अब उसी के बेसिस पे दे मेड अ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम. Now what is this energy profile diagram? Energy profile diagram gives you an explanation about the potential energy, the change in potential energy of the reaction. So हम लोग ने potential energy को y axis पे प्लॉट किया है और reaction coordinate को x axis पे. तो अब ये potential energy का क्या फंडा है? तो suppose this is a bond, okay? ये bond है. अगर मुझे इस bond को break करना है, इसको separate करना है, तो I need some energy. ओके मैंने कुछ एनर्जी सप्लाई किया तभी मैं ये बॉन्ड को ब्रेक कर पाया, वरना ये ब्रेक नहीं होता. तो इसका दूसरा मतलब क्या हो गया? व्हाट इज अदर मीनिंग? अदर मीनिंग इज दैट कि दिस बॉन्डेड सिस्टम हैज़ इटसेल्फ अ एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड. दैट इज व्हाई आई नीड टू अप्लाई एनर्जी विच इज स्लाइटली ग्रेटर देन द एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड टू ब्रेक इट लाइक दिस. तो अगर मैं अपनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूँ इसका मतलब सामने वाले मॉलिक्यूल में भी एनर्जी है, तभी वो ब्रेक हुआ. सिंपल है. तो मतलब एनर्जी स्टोर्ड व्हेन अ बॉन्ड इज
formed, and any stored form of energy is called as potential energy. तो जब OH minus ions will attack on the carbon atom, they will form a certain bond. क्लियर है? मतलब पोटेंशियल एनर्जी OH और CH3 के सिस्टम में स्टोर्ड हो रही है. तो सी प्रॉपरली, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट इनिशियली, मतलब जब वो रिएक्ट कर रहे हैं उससे पहले उनके अंदर जो एनर्जी थी वो ये एनर्जी है, दैट इज मॉलिक्यूलर एनर्जी. इतना पार्ट, दिस इज द मॉलिक्यूलर एनर्जी. फिर आके वो रिएक्ट किए, जैसे आके वो रिएक्ट किए OH माइनस एन सी को अटैक किया फ्रॉम द बैक साइड, तो O और C का बॉन्ड बनना चालू हो गया. जब बॉन्ड बनना चालू होगा तो O और C के सिस्टम में एनर्जी स्टोर्ड होते 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 एक पॉइंट पे आ जाएगी, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन स्टेट, वेयर द 50% बॉन्ड इज फॉर्म एंड 50% बॉन्ड इज ब्रोकन. इस पर कॉन्सेंट्रेट करो सिर्फ, क्योंकि ये अटैकिंग है. तो यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट बन गया, दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट. सी प्रॉपरली, क्लियर है? फिर ट्रांजिशन स्टेट जैसे ही फॉर्म होगा, आगे का रिएक्शन जो है वो ऑटोमाइज्ड हो जाएगा. वेयर द न्यूक्लियर रिएक्टिविटी कम्स इनटू पिक्चर, द बॉन्ड विल बी ब्रोकन एंड द प्रोडक्ट विल बी फॉर्म. तो ये हाफ ग्राफ जो मैंने देखो यहाँ पर बनाया, इतना पार्ट ग्राफ, इट्स फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन. सिमिलरली अगर मैं बैकवर्ड के लिए बनाऊंगा तो बैकवर्ड के लिए मुझे यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा. फ्रॉम योर आई नीड टू स्टार्ट दिस पॉइंट. और यहाँ पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, आई नीड टू राइट डाउन द रिवर्स ऑफ द रिएक्शन. सी प्रॉपरली, रिवर्स ऑफ द रिएक्शन में आई नीड टू राइट डाउन योर CH3OH प्लस Br माइनस विच इज अटैकिंग. पर अगर बराबर देखोगे, बिना ट्रांजिशन स्टेट क्रॉस किए यू वोंट गेट द प्रोडक्ट. ओके, so we need to cross the transition state to get the product. तो ट्रांजिशन स्टेट के लिए जो एनर्जी जाती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी. सो दिस इज फ्रॉम ईयर टू ईयर, इट इज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, एंड फ्रॉम ईयर टू ईयर देर इज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. वेन एवर एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, द रिएक्शन प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. तो अब बराबर देखो, यहाँ से लेके फ्रॉम ईयर टू द ट्रांजिशन स्टेट द एनर्जी इज मोर, मतलब बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है. एंड एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन. यू नीड टू रिमेंबर वन थिंग, OH माइनस जब कार्बन से अटैक करता है तब एक्चुअली रिएक्शन स्टार्ट नहीं होता. ऑटोमाइज रिएक्शन कब स्टार्ट होता है, व्हेन दे रीच टू अ ट्रांजिशन स्टेट. फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करो, आप यहाँ पर एक कार में हो, ठीक है, ये कार से आप मूव करते हुए ऊपर जा रहे हो. योर फिजिक्स से अच्छा एक्सप्लेनेशन मिलता है. विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम योर यू रीच योर पॉइंट. ओके, दिस इज योर फाइनल डेस्टिनेशन. फ्रॉम योर यू नीड टू स्टार्ट एंड यू नीड टू रीच योर. आपने सपोज यहाँ से स्टार्ट किया फ्रॉम योर, बट यहाँ आते आते आपका फ्यूल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी कार में फिनिश हो गई, यू विल फॉल बैक. द सेम थिंग हैपन्स विद योर. when OH minus attack the carbon atom, and if they don't have that sufficient energy to reach to the transition state, they will fall back. और सपोज आपके पास वो एनर्जी हो गई, तो आप अपनी कार को इस पीक तक लेके जाओगे. इस पीक पे लेके जाने के बाद इवन इफ़ यू लूज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इवन इफ़ यू लूज फ्यूल एनर्जी, विद द हेल्प ऑफ अ ग्रेविटी, ठीक है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, द मास ऑफ द व्हीकल, इट विल स्टार्ट मूविंग ऑटोमेटिकली इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. मतलब रिएक्शन इसके बाद ऑटोमाइज्ड हो जाता है. यहाँ पहुँचाने के बाद कोई टेंशन नहीं होती मॉलिक्यूल्स को, दे विल स्टार्ट रिएक्टिंग ऑटोमेटिकली बाय इटसेल्फ इन द रिएक्शन प्रोसीड. बट अगर बराबर देखोगे तो बैकवर्ड रिएक्शन प्रोसीड होने के लिए रिक्वायर ग्रेटर एनर्जी, एंड फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोसीड होने के लिए लेसर एनर्जी. इसके लिए बैकवर्ड रिएक्शन इसका फीजेबल हो जाता है, सॉरी फॉरवर्ड रिएक्शन फीजेबल हो जाता है, बट बैकवर्ड रिएक्शन फीजेबल नहीं होता. एंड इन द अदर वर्ड वी से कि OH माइनस इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, देयरफॉर इट कैन अटैक इजीली and replace Br minus, but Br minus is a weaker nucleophile, therefore it cannot replace the OH minus ions. Got it? And the difference between the energy of the reactant and the product is called as enthalpy. And here if you see properly, enthalpy is nothing but enthalpy of product minus enthalpy of reactant. मतलब heat energy of product minus heat energy of reactant. बराबर देखो, heat energy of product is less, हीट एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज मोर. इसके लिए आपका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव. मतलब हीट रिलीज हुआ, मतलब ये रिएक्शन क्या हो गया, एक्सोथर्मिक इन नेचर. सो दिस इज द एंटायर ग्राफ. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ SN2 mechanism. We get only one peak. Why are you making only one peak? Because it is only one step reaction. It forms a transition state. That is the most important. Highly unstable. Highly unstable मतलब अगर कोई भी मॉलिक्यूल ये ट्रांजिशन स्टेट रीच कर गया, then it will automatically
follow the entire reaction. Clear है? So every molecule has to reach to a transition state. बट अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि साइंटिस्ट सेज कि OH माइनस आयंस अटैक फ्रॉम द बैक साइड, जिसका प्रूफ हमको केमिकल काइनेटिक देता है. बट ऑर्गेनिक में आप कैसे प्रूफ निकालोगे कि OH माइनस लिटरली बैक साइड से ही अटैक किया है? सो दैट प्रूफ इज गिवन बाय stereochemistry of SN2 reaction. Stereochemistry is to decide whether the attack take place from front side or back side. ये प्रूफ देता है. ओके, पहले लॉजिकली हम लोग इमेजिन करते. सपोज अगर बैक साइड से अटैक होता तो पूरा इन्वर्जन हो जाता, मतलब पूरे H2 उल्टी साइड चले जाते, इन्वर्स हो जाता. और अगर ये फ्रंट साइड से अटैक होता तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, जहाँ पर आपको Br दिख रहा है उसकी जगह पे क्या आएगा? OH. तो हम लोग ये कैसा प्रूफ करेंगे कि OH माइनस बैक से रिएक्ट किया है कि OH माइनस फ्रंट से रिएक्ट किया है? तो उसका प्रूफ हमको एक्सपेरिमेंटली लेना पड़ेगा. विद द हेल्प ऑफ व्हाट? विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस. याद होगा ऑप्टिकल एक्टिविटी, DNL फॉर्म, इनेंशियोमर्स. एक एग्जाम्पल लेते हैं. चलो कम ऑन, लेट अस टॉक अबाउट दिस. ओके, मैंने एग्जाम्पल लिया. सी दिस एग्जाम्पल, फोकस हियर. दिस इज कॉल्ड एज 2-chlorobutain, जिसमें ये कार्बन कायरल है. ओके, इसमें मैंने OH माइनस किधर से दिखाया? बैक साइड से. पूरा कॉन्फ़िगरेशन क्या दिखाया? इन्वर्स. फिर मैंने 2-chlorobutain लिया, सेम कंपाउंड, और OH माइनस को मैंने फ्रंट से अटैक कराया. तो आपको क्या मिल रहा है? रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. सेम कॉन्फ़िगरेशन, जहाँ पर C2H5 था वो उधर ही रहेगा. लेकिन फर्स्ट केस में अगर बैक से अटैच होगा तो C2H5 उसकी उल्टी साइड चले जाएगा, द रिवर्स साइड. नाउ सपोज मैंने इसका डेक्स्ट्रो फॉर्म लिया है. इमेजिन करो, विच फॉर्म? डेक्स्ट्रो. इमेजिन. तो डेक्स्ट्रो क्या करता है? प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को राइट पे रोटेट करता है. ओके, इट विल रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड ऑफ द सिस्टम. यहाँ पर भी मैंने डेक्स्ट्रो लिया है. तो ये कंपाउंड 2-chlorobutain दोनों जगह सेम है. लेकिन अगर अटैक फ्रंट से होगा देन डेक्स्ट्रो विल रिमेन डेक्स्ट्रो बिकॉज द कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट चेंजिंग. But if the attack take place from back side, then dextro will convert into a levo, क्योंकि configuration change हो गया. Clear है? तो if the configuration change होगा तो dextro से levo बनेगा, लेकिन अटैक किधर से होगा? बैक से. और अटैक अगर फ्रंट से हुआ तो डेक्स्ट्रो ही रहेगा. तो मैंने क्या किया? ये कंपाउंड लिया, इस कंपाउंड में OH माइनस ऐड किया, और ये कंपाउंड में OH माइनस ऐड करने से पहले मैंने इसको पोलैरिमीटर में चेक किया. तो मैंने चेकड इन पोलैरिमीटर, इट वॉज डेक्स्ट्रो. देन व्हेन आई ऐड OH माइनस आयंस, वो अल्कोहल बन गया होगा. अब मैंने उसको पोलैरिमीटर में वापस डाला टू चेक, एंड द रिजल्ट विच वी गॉट इन पोलैरिमीटर was the entire dextro compound converted into levo with same magnitude or a different magnitude, doesn't matter. बट डेक्स्ट्रो से किस में कन्वर्ट हो गया? वो लेवो में. मतलब प्लस रोटेशन से किस में कन्वर्ट हो गया? नेगेटिव रोटेशन. दिस वॉज द फैक्चुअल एनालिसिस. तो ये एक्चुअल में हुआ, ये रिजल्ट नहीं आया. तो ये रिजल्ट आया, मतलब ये प्रूफ करता है कि OH माइनस डेफिनेटली कहाँ से अटैक किया होगा? फ्रॉम दी बैक साइड, बिकॉज डेक्स्ट्रो किस में कन्वर्ट हो गया? लेवो में. तो मैंने क्या लिखा है? द प्रोडक्ट X इज ऑब्टेन विद इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एंड नॉट Y नहीं मिला. Therefore the attack of the nucleophile definitely take place from back side, and this inversion of configuration was theoretically anticipated by Paul Walden. इसके लिए इसको हम लोग वॉल्डन इन्वर्जन बोलते हैं. याद रखना द वर्ड वॉल्डन इन्वर्जन. ठीक है. अब सिंस वो बैक साइड से अटैक कर रहा है, ये तो प्रूव हो गया. नाउ हाउ विल यू डिसाइड द ऑर्डर? तो सबसे पहले मैंने आपको ऑर्डर बता चुका था कि RI ग्रेटर देन RBr ग्रेटर देन RCl ग्रेटर देन RF होता है. लेकिन अभी अल्काइल हैलाइड्स का ऑर्डर देखते हैं. ठीक है. तो OH माइनस आयंस अटैक कार्बन एटम फ्रॉम बैक साइड. अगर कार्बन एटम के पास में अगर हम लोग हेवियर अल्काइल ग्रुप प्लेस करते हैं, वेरी हेवियर अल्काइल ग्रुप्स, so the attack of the OH minus on the carbon atom become difficult. Why difficult? Because of steric factor. Steric मतलब ओवर काउंटिंग. सपोज इनकी जगह आपने मिथाइल लिया है C, तो मिथाइल एक टेट्राहेड्रल अम्ब्रेला शेप होगा लाइक दिस. सी इसके ऊपर आ जाएगा, फिर यहाँ पर एक CH3 आ जाएगा H H H, फिर यहाँ एक CH3 आएगा H H H, फिर यहाँ Br आएगा. सो अब इसके अंदर OH माइनस को इस C प्लस पे अटैक करना बहुत डिफिकल्ट है बिकॉज देयर इज अ हेवियर मिथाइल ग्रुप सराउंडिंग इट. तो दिस इज कॉल्ड एज ओवर क्राउडिंग या स्टेरिक फैक्टर. अगर मैं ये R कम कर दूंगा, इसकी जगह H ले लूँ, यहाँ पर एक H ले लूँ, यहाँ पर एक H ले लूँ, एंड मेक इट अ मिथाइल लाइक दिस CH H H एंड Br, तो OH माइनस का अटैक ईजिली हो जाएगा. क्लियर है?
So that is why the order of reactivity will be methyl halide greater than primary, greater than secondary halide, greater than tertiary halide. Why it is like कि methyl halide primary, secondary और tertiary से ज़्यादा है? Because methyl halide में steric factor कम है. तो क्यों हमने ये सिलेक्ट किया? Because OH माइनस आयंस कहाँ से अटैक करता है? From which side? From the back side. It has been proven experimentally. So this was the entire SN2 mechanism.